Good morning, students. Today is the lecture 2 of balance of payment. Already we have discussed yesterday. I have discussed regarding the components of current account BOP. So this is the flow chart of the same. That is components of current account. It means current account is divided in three part: export of goods, import of goods, which are called visible items. So export and import of visibles. So goods are visible and this is invisible, which we cannot see. Okay. So invisible is divided in three part: income, non-factor services, and current transfers. Okay. So income is a monetary transaction of factor services, and this is also monetary transaction of non-factor services. And current transfer, this is a unilateral transfer or one-sided payment. Okay. Already I have discussed in the previous lecture. Okay, in the previous lecture I have already discussed about the same. So next one is the capital account. Okay, so capital account, as I told you, current account records receipts and payment of such transaction which doesn't impact on asset and liability status of a country. So capital account is that which record receipts and payment of such transaction which cause an impact on एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री. ओके, सो जो इम्पैक्ट डालता है एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस पे, इसका मतलब है वेदर लाइबिलिटी और एसेट ऑफ कंट्री आर ईदर रेज्ड और रिड्यूस. ओके, सो इसका मतलब है कि या तो एसेट बढ़ेंगी या कम होंगी, एंड सेम एज इट इज विद द केस विद लाइबिलिटी, एंड इट लीड टू फ्यूचर क्लेम्स. ओके, सो करंट अकाउंट इज जस्ट वाइस वर्सा ऑफ कैपिटल अकाउंट, because in a current account it doesn't lead to future claims, but capital account lead future claims. Okay, so I have written a note over here because sometimes the students may confuse in it कि जो export and import of all types of goods है, चाहे वो consumer good हो या capital good. Consumer जो consumer use करता है, and capital good which are used by producer. Okay, so these are recorded as visible trade in the current account of BOP. Fine. So ऑल द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, चाहे वो कंज्यूमर हो कैपिटल हो, वो सारी की सारी कहाँ पर आएंगी? करंट अकाउंट में. दीज आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इन अ कैपिटल अकाउंट, बिकॉज द क्वेश्चन कम्स इन द माइंड कि ये एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस को इफेक्ट करता है, बिकॉज अगर एक मशीनरी खरीदी जाती है तो वो एसेट को इफेक्ट करेगा, बट दीज आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन अ करंट अकाउंट ऑफ BOP. सो दिस could be a 1 mark question. Okay, so next are the components of capital account, as current account has a components or visible trade, invisible trade, as well as capital transfer. So these are components of capital account. Borrowing, so we have a two type of borrowing: external commercial borrowing and external assistance. So external commercial borrowing, okay, so there is some little difference in it. It is available at market rate of interest. ठीक है, मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, बोरिंग क्या है? उधार लेना ना. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमें जो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, जबकि एक्सटर्नल असिस्टेंस मीन्स यू आर टेकिंग हेल्प. असिस्टेंस मीन्स आप जो है किसी भी तरीके के एडवाइस यू आर टेकिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, सो वेयर असिस्टेंस इज अवेलेबल एट कंसेशनल रेट. सो एनी हेल्प इज नीडेड. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती है, जबकि ये कंसेशनल रेट पे. सो एज एन एग्जाम्पल, अगर ये 8% पे मिल रही है तो इट इज अवेलेबल एट 6%. सो दीज आर द बोरिंग, उधार मिल रहा है ये. ठीक है, नेक्स्ट इज बोरिंग जो है वो रेज करती है लाइबिलिटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इज इट क्लियर? क्योंकि बोरिंग जब आप उधार लेंगे तो वो क्या करेगा? लाइबिलिटी बढ़ा देगा. ठीक है, बट इट रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट आइटम इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP, एज रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम, बिकॉज इफ यू आर इट इज रेजिंग आर लाइबिलिटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट ऑन द अदर हैंड बोरिंग मतलब आप उधार ले रहे हो. अगर आपने 100 करोड़ रुपए का उधार लिया तो इसका मतलब आपको 100 करोड़ रुपए आपके पास आए हैं. सो इसलिए दीज आर रिकॉर्डेड इन अ क्रेडिट आइटम इन अ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जितने भी आपके रिसिप्ट्स हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट आइटम में. सो दिस इज अ रिसिप्ट ऑफ 100 करोड़ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट: पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड FDI. ओके, आपने FDI वर्ड तो बहुत बार सुना होगा. ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव आल्सो लिसन दिस वर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एज वेल. ओके, सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज एन इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स एंड बॉन्ड. देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन इट कि जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है शेयर्स और बॉन्ड्स के बीच में,
वो तो है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एंड विच इज रिलेटेड टू ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, ओके, जिससे मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉलमार्ट है, ठीक है। सो मैनी FDI इज एग्जैक्टली क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि फॉरेन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, okay, so Walmart has this store, this is a multinational company, foreign company, और इसने क्या किया, अपने स्टोर्स जो है इंडिया में सेटअप किए हुए हैं, सो इंडिया इज गेटिंग इनकम फ्रॉम द सेम, ओके, सो दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो आई होप इट द डिफरेंस इज क्लियर। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब शेयर्स और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, एंड FDI इज जब ऑनरशिप चेंज होती है, मीन्स कोई अपना सेटअप जो है, फॉरेन कंपनी अपना सेटअप जो है इंडिया में करती है। So it's a part of FII, foreign institutional investors, okay. Then other components of capital account, sometimes the students are confused कि foreign investment के only there are capital account has only 2 components. No, capital account have further on divided into 5 parts. So first one I have discussed, second one is foreign investment, and third one is NRI deposit, non-resident of India deposit, okay. इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, NRI deposit only which are made in the domestic economy or deposit by NRI. It means whatever is invested by NRI, जैसे नॉन रेजिडेंट है, ओके, आपका कोई रिलेटिव है वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, ठीक है, अब वो फॉरेन कंट्रीज में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, सपोज द पर्सन इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, सो इफ अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो दिस इज कॉल्ड NRI डिपॉजिट। बट कीप इट इन योर माइंड, अगर आपका रिलेटिव जो है वो फॉरेन में रह रहा है, आपको पैसा भेज रहा है, सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द NRI डिपॉजिट। So only which are made in the domestic economy or deposited by NRI, or which are sent by NRI to their family will be treated as current transfers. क्लियर, ये करंट ट्रांसफर होगा, ये हमारे NRI डिपॉजिट में नहीं आएगा क्योंकि दिस इज अ वन साइडेड पेमेंट, ओके। सो दीज आर रिकॉर्डेड इन अ करंट अकाउंट ऑफ BOP, क्योंकि आपको पता है कि करंट अकाउंट ऑफ BOP में जो है वो आपका जो है करंट ट्रांसफर्स आते हैं। सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। NRI डिपॉजिट, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो आपके रिलेटिव आपको पैसा भेज रहे हैं वो ऐड नहीं होगा। Next is banking capital, okay. So exactly what is banking capital? It means foreign asset held by commercial bank, ठीक है। commercial bank जो है वो उनके पास जो है जो भी foreign assets है, ठीक है, वो उसे हम banking capital बोलते हैं। So commercial bank जो है वो क्या करते हैं, they are converting their foreign asset into liquidity. Liquidity means that is in a cash form. Inflow of foreign exchange into the domestic economy tends to rise. अब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, वो अपनी फॉरेन एसेट्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में बढ़ जाता है, ओके। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, जो कमर्शियल बैंक के पास फॉरेन एसेट्स है उसे हम बोलते हैं कि बैंकिंग कैपिटल। अब कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, फॉरेन एसेट को लिक्विड मतलब बेच रहे हैं, तो कैश फॉर्म में उसको इजीली कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका इनकम जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी में बढ़ेगा। लास्ट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ओके। सो sometime exactly this is arising because purchases in the international market, okay, मतलब immediate there is no immediate payment. short term trade credit मतलब आपने short term उधार लिया है, means आपने जो है there is no immediate payment for the same, आपने immediate payment नहीं की है, तो ये क्यों अराइज होता है, ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। ये कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में विद नेगेटिव साइन, ओके, बिकॉज अगर जितना भी आपका इनवर्ड फ्लो है, मतलब पैसा आ रहा है, इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड विद पॉजिटिव साइन, और जो पैसा जा रहा है वो आपका नेगेटिव साइन में शो करते हैं, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो भी इनकम है वो आपकी क्रेडिट साइड आएंगी, ओके, और जो भी आपके पेमेंट है वो डेबिट साइड आएगी, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।